Till now we are here. We discussed few things about routing. We discussed about routers, routing protocols, static routes, and we discussed about the RIP and EIGR, the need of it, how they operate in the network, and how we configure them on the routers. Now we are left with this OSPF. It's again a routing protocol, but we'll discuss this later because it is a little bit more complicated than any other things, any other routing protocols. We will move ahead with the switching. Uh, switching my it's easy in CCNA. The switching is very basic. It's easy to understand, easy to grasp. In order to learn the switching, let's first revise few things about routers so that we can understand the need of switch in our network. From the day one मैंने आप लोगों को एक चीज बोली, that is कि the routers and switch, they are the backbone of the networks. No matter आपको कोई भी network start करना हो छोटा या बड़ा, the router and the switch, it is a basic necessity of any network. Without these things you cannot build any network. Then you can add the rest of the things. They are optional, they are needful as per your requirement. You can add firewall, if you can add load balancers, you can add many other things, proxy servers and all those things. You can add those things, but that is up to your requirement. And the basic functionality, which is routing and switching, it is still the basic necessity of any network. इसके बगैर कोई network नहीं चलेगा और ना ही बन पाएगा. So it's that's why these are the मतलब CCNA से you learn about routing and switching since from the basic, थोड़ा 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 करके आपको इसमें advancement आएगी. Let's discuss further about routers. Definitions हमने बहुत बार देखी. Let me again draw a diagram. ओके. यम डाब खंचुस को हमेशा बना हुआ है ना, हमेशा हर किसी लेक्चर में मैंने ये बनाया है. और इसका रीजन ये है कि आपको जो नेटवर्किंग, जितनी आपको एडवांसमेंट चाहिए ना नेटवर्क, मतलब एम आई शेयरिंग द स्क्रीन? नो, राइट. ओके. सो द थिंग इज व्हाई आई एम ऑलवेज ड्राइंग दीज बॉक्सेस. क्योंकि जो नेटवर्किंग है ना, देखो नेटवर्किंग में एक चीज है, यू हैव टू विजुअलाइज द थिंग्स बाय योरसेल्फ. आप अगर कोडिंग सीखोगे या एआई सीखोगे या कुछ भी सीखो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखोगे, you will write a code, and after finishing the code you will see the results on the screen, है ना. You will run the code, you will see it in browser, आपको results मिलेंगे. You can visualize the things here, but here you will set up a network. You need to visualize it from in your inside your brain. You need to visualize it with yourself, क्योंकि even after बिल्डिंग द नेटवर्क आप ये सारा कॉन्फ़िगर करोगे. व्हाट इज द अल्टीमेट टेस्टिंग? आप कैसे देखोगे नेटवर्क चलेगा? दैट इज सिंपली पिंग. sekarang kita ping your. You won't be able to see कि उसमें routing कर सो किस कहीं चले. For that you have to build packet captures, और उन packet captures को देखने के लिए आपको ज़्यादा knowledge होनी चाहिए about the headers and all. So जो graphical input मिलता है हमें अदर सब्जेक्ट्स में, वो graphical चीज़ यहाँ नेटवर्किंग में नहीं होती है. You can build the tools, you can monitor the network, मगर इस कोर नेटवर्क मतलब you cannot visualize everything in the network. That is the hard part in network. So you have to visualize it in the brain, you have to visualize it yourself कि क्या हो रहा है अंदर से, क्या हो रहा है. उससे आपको बहुत फायदा आएगा. That's why always I try to make these diagrams so that you will be visualized, you will be able to visualize the things. सो सो फार वी डिस्कस्ड अबाउट द राउटर्स, और हमने बोला कि हर कोई इंटरफेस राउटर का एक डिफरेंट नेटवर्क में होता है, क्योंकि हमारा राउटर लगाने का काम ही यही है, ताकि ये करे डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड पानवेंट कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश, ताकि ये डिफरेंट नेटवर्क्स आपस में कम्युनिकेट कर पाए. इन स्टार्टिंग में एज अ लेमेन्स टर्म, लेमेन्स डेफिनेशन हमने ये देखा कि इट इज लाइक अ डोर, इट वर्क्स लाइक अ डोर. अगर क्या नेट ये के नफराना योर आसो, दे विल यूज द डोर ताकि तुम अचन योर, राइट. दिस राउटर इज सेम लाइक अ डोर. अगर आपको इस नेटवर्क से इस नेटवर्क तक जाना है, यू विल बी गोइंग थ्रू द राउटर. दैट इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ द राउटर. मगर अगर आपको इंटरनली कुछ कम्युनिकेट करना है, तो यू विल बी इजी टू डू इट. सो जितने भी आप इस नेटवर्क में पीसीस डालोगे, दे डोंट नीड टू गो थ्रू द राउटर. कैसे मेंशन, दे मिस दे मिस नेटवर्क से बात करें, उनको आपस में बात करें, तो दे विल बी शाउटिंग ईच अदर हियर. अब व्हाट वी ऑलरेडी डिस्कस इज कि मैं वन नेटवर्क लेता हूँ ताकि इजी हो जाए.
हर का इंटरफेस ऑफ सेपरेट नेटवर्क सिस्टम, यही हमने देखा पहले दिन से. एंड लेट्स से दिस इज इन टू नेटवर्क. अगर वन को टू के साथ, चलो ऐसे लेते हैं पीसी 1.1.1, 1.1.2, यहाँ से लेंगे 2.2.1, 2.2.2, let's keep here 3.3.1. These are the PCs. ये IP addresses PC को मिले हैं 1.1, 1.2, यहाँ से 2.1, 2. These are PCs. These are devices inside it. If अगर वन को टू के पास जाना है, so it will make a packet, और उस पैकेट में डेस्टिनेशन टू होगा. It will send it to router. Router will route it to the टू. राउटर अपना राउटिंग टेबल देखेगा. It will check किस इंटरफेस पे टू नेटवर्क है, and it will pass the traffic through that interface. Again, few other thing, कि अगर एम्स वन टू सहित आइज गस, okay, they should be attached with somehow, they should be attached with each other, right? अब इसके लिए या तो हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए कि राउटर्स पे अटैच तक आख एंड बांध, और यहाँ से उसको इस एंड से उसको दो इंटरफेसेस निकालते हैं ऐसे. बट दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? ऐसा कोई वायर ही नहीं है, एंड इट वोंट मेक द थिंग्स वर्क प्रॉपरली. इन ऑर्डर टू डू दैट, कि एक ही नेटवर्क को मल्टीपल डिवाइसेस को सेटअप करने के लिए we introduced few things like hubs, switch, bridge. These were the technology जो क्या हमने पहले पहले इंट्रोड्यूस किया. वन ऑफ द फर्स्ट थिंग जो हमने इंट्रोड्यूस की, इट वाज अ हब. हबस ओसा हबस ने युथी का ट्रैफिक उस इवा लेट्स से कि 1.1 करने कुछ भी भेजा, हब उस प्रश्न कर रहे सारी इंटरफेसेस की करा पुश. अगर इस हब पे 10 इंटरफेसेस हो, तो बराबर 10 इंटरफेसेस पे इस नेटवर्क को पास करता, और उस 10 इंटरफेस पे एक पीसी ये भी ऐड होता, इसके पास भी ये ट्रैफिक पहुंचता. ये 1.2 देखता कि ये ट्रैफिक मेरे लिए है, तो रेस्पॉन्ड करता. अगेन जब रेस्पॉन्ड करता, तो ये ट्रैफिक हर किसी इंटरफेस से जाता, चाहे इन उन पीसीज को या उन डिवाइसेस को इसकी जरूरत हो या ना हो, इट विल स्टिल पास द नेटवर्क. सो इट वाज नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस, इट वाज अ डम डिवाइस. इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई, वो हम देखेंगे थोड़ी देर में. एंड वी डिस्कस्ड दिस हब एंड वी इंट्रोड्यूस्ड स्विच. स्विच यही काम करता है कि उसको इंटरनल कम्युनिकेशन करवानी है विद इन द नेटवर्क, यही काम करना है. बट इट इज एन इंटेलिजेंट डिवाइस. ये यही काम थोड़ा सोच के करता है, ये थोड़ा डिसीजन लेता है कि कत इंटरफेसेस पे ट्रैवल. सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट अबाउट कि हब में क्या खामियां थी, ताकि हमें स्विच की फंक्शनैलिटी समझ आए. एंड उन सब से पहले लेट्स बिल्ड सम पैकेट्स हियर. अगर हम इसको पीसी को लेंगे 1.1, ओके, 1.1, यू आर पिंगिंग, आप पिंग कर रहे हो टू टू डॉट लेट्स फर्स्ट पिंग टू 10 1.0.0.2. दिस इज द कमांड यू आर डूइंग इट फ्रॉम द CLI. जब आप इसको एंटर करोगे, हियर इज व्हाट विल हैपन. एक पैकेट कैसे बनेगा इनसाइड योर पीसी. अथ मंज डेटा, सोन डेटा जो हमने जनरेट किया, वो जनरेटेड द पिंग. दिस थिंग इज ट्रू फॉर एवरी ट्रैफिक. अगर हम HTTPS करते, तो यहाँ डेटा में HTTPS ट्रैफिक ऐड होता. वेबसाइट रिक्वेस्ट, अगर कुछ और भी रिक्वेस्ट करते, द डेटा विल बी डन. यहाँ पे हम पिंग कर रहे हैं, सो द डेटा विल बी पिंग और ICMP. जब आप आगे बढ़ोगे, पिंग यूजेस ICMP प्रोटोकॉल, बट यहाँ पे मैं पिंग की लिखूंगा. पिंग किम शुकारा 1.0 डॉट पिंग रिक्वेस्ट, ओके. इतने करा रिक्वेस्ट किसको, 1.2 को. ये goes on original data, then there will be a TCP header, uh, sorry, transport layer header, and there will be a IP header, and then there will be a data link layer header. यहाँ पे ping is not a TCP communication, but यहाँ पे एक सिर्फ पोर्ट नंबर्स ऐड होंगे, ओके. अब भी हमने पोर्ट नंबर्स डिस्कस नहीं किए, सो लेट्स लीव दिस. आईपी हेडर, हम आईपी हेडर से ट्राई करेंगे. We will fill the IP header. Ping request generate हुआ. Now in the IP header there will be the source IP, there will be the destination IP. What will be the source IP here? It will be जहां से पैकेट जनरेट हुआ 1.0.0.2, and what will be the destination? So sorry, जहां से पैकेट जनरेट हुआ it will be 1, और जहां पे ये गया it will be 1.2.
ओके, दिस इज द रिक्वेस्ट वी मेड। वन है spawn, that will be the source destination जो हमने फाइंड की, that is 1.2, and then there is a mac, source mac and destination mac। सोर्स मैक का वो इसका अपना है, सो इट विल यहाँ पे अपना लिखेगा, लेट्स से इट इज a.a.a। व्हाट अबाउट द डेस्टिनेशन मैक सुशी, वो तो दूसरे पीसी का है, एंड हम तो पिंग कमांड में वो चीज मेंशन नहीं करते कि डेस्टिनेशन मैक फिट एमसीएल। सो इट हैज टू फाइंड इट कि डेस्टिनेशन मैक का क्या है, इस 1.0.0.2 का मैक एड्रेस क्या है, वो इसको पहले फाइंड करना है। गो ये पैकेट अति गॉड मकलाई कुछ ताना ये डेस्टिनेशन में है, तब जाके ये फिल कर सकते हैं, तब जाके ये डेटा पास कर सकते हैं। ओके, ना कि कैसे ये डेस्टिनेशन में सेंड करेगा, वो विल सी इट वंस वी आर एट द स्विच। अभी हम लोग बेसिक है, तो यहाँ पे लेट सपोज इसने डेस्टिनेशन में लाया एंड इट पुट इट हियर बीबी। अब ये ट्रैवल करने के लायक है, सो ये पैकेट यहाँ से जाएगा, PCA से जाएगा, एंड इट विल गो टू द स्विच। इट इज, अगर ये आशा हब, हब वोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग फ्रॉम इट, डम्प डिवाइस, वो किसी चीज को कंसिडर नहीं करेगा, तो सोए पैकेट हार पिनता जितने भी पोर्ट्स हब के पास है सबको भेजेगा। नाउ अगर ये स्विच के पास जाएगा, स्विच विल चेक दिस डेस्टिनेशन मैप। ओके, उसको आईपी एड्रेस से कुछ नहीं है, आईपी एड्रेस कौन चेक करता है, आईपी एड्रेस विल चेक द राउट, मगर ये अपना इंटरनल कम्युनिकेशन है। सो यहाँ पे डेस्टिनेशन मैक बराबर पीसी का, पीसी बी का मैक एड्रेस होगा। सो जब ये स्विच के पास जाएगा, स्विच देखेगा कि ये तो पीसी बी है, स्विच अपना मैक एड्रेस टेबल चेक करेगा और वो देखेगा कि मेरा बी मैक किस इंटरफेस पे है, उसने वो स्टोर किया होगा, और ये उसी इंटरफेस पे इस ट्रैफिक को पास करेगा। ये ट्रैफिक वाइट बी एस निश, so there will be some change b which, okay, let's make another diagram for b। बी के पास ये पैकेट पहुंचा, बी एंड व्हिच डेस्टिनेशन मैक चूज बी, ओके, इट विल प्रोसेस द डेटा एट बी, देखेगा ओके 10.1.2 वो भी मैं ही हूँ, एंड इट इज आस्किंग फॉर अ पिंग रिक्वेस्ट। ये लिम सारी पैरामीटर व्हिच बी करेगा, सो एज पिंग रिप्लाई along with IP header to डेटा में PCB से it will be ping reply with source IP address here, it gets change, it gets reverse, 1 to 2 kara reply to 1, okay, and MAC address it will also change क्योंकि अब ट्रैफिक जा रहा है B से towards A, so this is the reply which B will send। okay, अगर ये हब के पास जाता है ये पैकेट, let's see here, अगर ये हब लाल के पास जाता, ये हो सकता dumb device and it always broadcasts the track, so network में, जी जी, हाँ 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 करेगा, ओके, सॉरी, ओके ओके, आई विल शेयर द यूट्यूब प्लेलिस्ट, उस पे भी अपलोड होगी ये थोड़ी देर, बट इट विल टेक अ टाइम। I share, ultimately you will find all the recordings somewhere either on Google Drive or on YouTube। okay, so where was I, hub, okay, hub ये एक डम डिवाइस है, एंड अगर ये हब लाल निमोनिश था वो लिखे, जो भी ट्रैफिक इसके पास आता था इट विल सिंपली ब्रॉडकास्ट, डज नॉट मैटर कि किसने भेजा, कहाँ भेजा, तेमिक आईपी एड्रेस क्या है, तेमिक मैक एड्रेस क्या है, ये नहीं देखता था, क्योंकि इसको समझ ही नहीं थी उन सब चीजों की, ऐसे बनून थी तेम हिसाब कि यपर ट्रैफिक की जस्ट ब्रॉडकास्ट, क्योंकि हमें यहाँ पे नीड वही लगी थी कि अगर ये वन सोर्स ही टूस नहीं संभव हुआ तो सो कैसे पहुंचेगा, हमने एक डिवाइस लगाया जो कि ब्रॉडकास्ट करता, वो अगर वन आस यपर एंड टू आस यपर, यहाँ से पिंक रिक्वेस्ट आती, इसको भी जाती, इसको भी जाती, इसको भी जाती, और फाइनली इसको भी जाती, यम कर ना डिस्कार्ड, क्योंकि इनके इनके लिए ये इंफॉर्मेशन थी ही नहीं, ना इस मैक एड्रेस यूं तो ना उस आईपी एड्रेस यूं, अब जिसका था उसका रिप्लाई, बट वंस इट विल रिप्लाई इट विल अगेन अननेसेसरी गो टू ऑल द डिवाइसेस, एंड फाइनली जिसको इसको जाना था वहां पे भी ये पहुंच ही जाएगा। दिस वाज द हब। अब इसमें प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम क्या है, एट वन टाइम इसने कुछ भी रिक्वेस्ट भेजी इस
बंदे को, मगर चूंकि गई ब्रॉडकास्ट यथ मज ये हर किसी के पास जा रही है। एट द सेम टाइम अगर कोई और डिवाइस पिंग करना चाहे या कम्युनिकेट करना चाहेगा किसी भी डिवाइस को, ये नहीं जाती थी, देयर वाज अ कोलिजन, क्योंकि ऑलरेडी अंदर ट्रैफिक हो रहा था। सो देयर विल बी अ कोलिजन ऑन दिस। दिस वाज द फर्स्ट थिंग, एट वन टाइम ओनली वन पर्सन विल बी एबल टू कम्युनिकेट। और दिस वन आई ब्रॉट हाफ डुप्लेक्स, क्योंकि एक टाइम पे सिर्फ एक ही चीज चल रही। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट लिमिटेशन। अब इस लिमिटेशन को सॉल्व करते करते हमने बहुत ज्यादा चीजें इन्वेंट की। द फर्स्ट थिंग विच वी इन्वेंटेड वाज जो इथरनेट केबल हम यूज कर रहे थे, वो यूज एज CSMA CD, अगर ये किसी को पता हो। एंड एनीवन नो अबाउट दिस टेक्नोलॉजी? ऐसा पूर्ण होता है इंजीनियरिंग। CSMA, which means career sense, खबर क्या तो डिटेक्शन, कोलिजन डिटेक्शन, career sense multi access, समथिंग लाइक दैट। तो ये क्या करता था, लेट्स चेक इट। इसके समझ थी, CSMACD फुल फॉर्म, हाँ, करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। सो व्हाट हैपेंस, क्या होता था ना, ये दिस टेक्नोलॉजी इज स्टिल यूज्ड इन द इथरनेट। इथरनेट केबल जो कि इसका हेडर है, एक इथरनेट केबल लगित या PCS। देखो ये क्या करता था, यदि यम्स PCS उस आसान ट्रैफिक सोज यो गो तमिस रुकान, यो कान दिवान, दैट इज करियर सेंस, यो कान दिवान हबस में कि अत मा ऑलरेडी कह ट्रैफिक, अगर कह ट्रैफिक उस ना ऑलरेडी अतनस, तो ये इसको रुकाता था, तो ना ना रुक। ओके, अ पे कर अगर नहीं कहें मा और इसके बाद ये ट्रैफिक सेंड करता था। इन केस अगर यहाँ पर ऐसे ब्या PC थे और वो भी इसी इथरनेट केबल के साथ जोड़ के था, यम त दुत कान यपर अम बो अत कहीं, यम त दुत कान कि अमिस तह पा अत कहीं। सो एट द सेम टाइम अगर ये ट्रैफिक भेजते, देयर विल बी अगेन कोलिजन, ठीक है, यम वात कहें। अम पे क्या कर, यु कोलिजन गो ना इन ट्रैफिक, युस अत ये टाइमर सेट करता था, ये वन यमिस कि अत हसा कोई कोलिजन, एक काम करो ट्रैफिक वापस ले लो, बट यू सेंड इट आफ्टर 1 सेकंड, यमिस वन यू सेंड इट आफ्टर 2 सेकंड। सो दिस इज अ कोलिजन डिटेक्शन। अगर कोलिजन गो, टेक द पैकेट्स बैक, मतलब सोच गसान डिस्कार्ड हुए थे, और इस PC को बोलता था कि आप 1 सेकंड के बाद भेजना, इम्स वन से बोल रहे 2 सेकंड के बाद। दिस इज हाउ दे विल, okay, so this is how they will prevent the broadcast domain, prevent the collisions। तो ये CSMA CD पहले आया, बट अगेन प्रॉब्लम तो वही है कि हाफ छु एट वन टाइम करे सिर्फ अकुई है कि कम्युनिकेट करे। सो इधर दिस देयर विल बी PC1 कम्युनिकेट और देयर विल बी PC2 कम्युनिकेट। अब सोचो कि एक डिपार्टमेंट में 10 लोग हैं, तेल कूता अत प्यार, एक प्यार तेल सोच पत सोच ब्या पत सोच ब्या। सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट सोल्यूशन फॉर एनीथिंग। दैट्स व्हाई वी इंट्रोड्यूस ब्रिड्ज, और ब्रिड्ज के पास हमारा आया स्विच। स्विच इज अ इंटेलिजेंट डिवाइस, इसलिए हमने लाया है इंटेलिजेंट डिवाइस। इट इज एन इंटेलिजेंट डिवाइस, वन इंटेलिजेंट डिवाइस क्या है, ये क्या करा तू, इसके पास कुछ फॉरवर्डिंग डिसीजन है, ये रोकता है ट्रैफिक को एंड थिंक्स अबाउट इट, फॉरवर्ड्स ऑन द पेज ऑफ मैक एड्रेस। वो मैक एड्रेस रिस्पेक्टिव फॉरवर्ड कर, हमने स्विच को बनाया ही इसलिए है ताकि करना इंटर कम्युनिकेशन, और राउटर को इसलिए बनाया ही इसलिए है ताकि कर बिटवीन द नेटवर्क्स कम्युनिकेट। ओके, अगेन स्विच यूज ताकि जो कि विद इन द सेम नेटवर्क में उनको कम्युनिकेट हो जाए। अगर डिफरेंट नेटवर्क तम खुद राउटर। सो स्विच के लिए ये जरूरी है कि ये वो सिर्फ एम IP एड्रेस कहें, क्योंकि नेटवर्क तो सेम है। सो इट वोंट चेक द IP एड्रेस, इट सिंपली चेक्स द मैक एड्रेस। अब ऐसा भी नहीं है कि स्विच IP एड्रेस आंत है जरूरत, ये जो हमने TCP/IP स्टैक OSI मॉडल जो पढ़, अत मज ये लेयर दे शुड बी फिल्ड, तब जाके ट्रैफिक पास हो सकता है। दैट इज द थिंग यू नीड टू रिमेंबर। तो अगर इंटरव्यू में ऐसे कभी पूछते हैं कि अगर स्विच करा मैक एड्रेस पे योत ट्रैफिक फॉरवर्ड, क्या अमिश IP एड्रेस की जरूरत, हाँ है, इसको है बहुत ज्यादा चीजों के लिए, बहुत ज्यादा प्रोसेस होती है स्विच पे, और उन सब के लिए IP एड्रेस का होना जरूरी है। एंड सेकेंडली वी कैन नॉट सेंड द ट्रैफिक विदाउट द IP हेडर।
ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सोन पीसी स्विच पैकेट विदाउट द आईपी हेडर या कहते हेडर जितने भी ओएसआई मॉडल्स में है। Now we will again look about this. While you think you can PC generate ping request और ये अब पहुंचती है स्विच के पास। You see switch essentially what? So switch it will start building the MAC address table. It can राउटर उसका बिल्ड आईपी एड्रेस टेबल उसमें हमने देखा था जो ही हम इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर करते हैं राउटिंग टेबल में कुछ राउट इंफॉर्मेशन सेव होती है विच इज कनेक्टेड एट लोकल एम पता इस या स्टैटिकली बाकी चीजन हिंद राउट दिवा या तो कोई राउटिंग प्रोटोकॉल लगाते थे तो ये स्पान डायनेमिकली सोजन राउट बट इन स्विच यूजुअली आजकल के जितने भी जनरेट स्विच है तिम गए करान रिक्वेस्ट जनरेट ताकि इनको पहले ही पता चले कि किस इंटरफेस के साथ कौन सा मैक है बट लेट्स सी इट ट्रेडिशनली युथी पीसीए उस करा मैक एड्रेस युथी मैक एड्रेस उस युथी पीसीए उस करान जनरेट पिंग रिक्वेस्ट यो था सेव कि मैं इस पोर्ट से F0/0 इस पोर्ट से मुझे रिक्वेस्ट आई पिंग रिक्वेस्ट इसको तो उसकी चीज के साथ कुछ नहीं है मगर जो सेव था कि F0/1 के साथ ए वाला मैक एड्रेस है ओके अब इसको जाना कहाँ है बीबी इनिशियली इसको तो मैक एड्रेस में है ही नहीं बीबी कहाँ है सो इनिशियली इट विल अगेन ब्रॉडकास्ट ठीक है सारी ये मगर यूस रिप्लाई दी था विच इज आवर टू लेट्स से कि ये यहाँ से F0/1 पे है you see to the reply it I be again MAC address so say that use F0/2 chu tapar shume B wala MAC address okay so next time you see be कर a BSP switch देखेगा अपना MAC address table that मैं a m इसको गसुन BS where is B F0/2 तो उठ के directly unicastly मैं कैसे broadcast के unicastly to this PC फाइन दिस इज हाउ स्विच विल वर्क जैसे मैंने पहले बोला कि आजकल जो स्विच था जो कि लेटेस्ट जनरेशन के है ये था ये था बड़े रिकॉर्ड कि मुझे इस इंटरफेस के साथ क्या है इस इंटरफेस के साथ कौन सा मैक एड्रेस है सो दिस मैक एड्रेस टेबल विल बी इनिशियली जनरेटेड ऑल बाय इटसेल्फ ईपीआर रिक्वेस्ट टू द रेस्पॉन्सेस किया सेकेंडली जो हमने डिस्कस किया ओके दिस वाज अबाउट द स्विच ऑफ इंटेलिजेंट डिवाइस जिसको कम्युनिकेट करना विद इन द नेटवर्क ओके ये बैक एड्रेस टेबल देखता है सेकेंडली उसी को पास करता है नाउ ऐसे देखो ये तो हमने एग्जांपल ली कि पिंग करा 1.1 टू अस ओके इस पीसी को समझ आता है ये इसने लिखा पिंग 1.0.0.2 ये पिंग चुकाड़े करा क्या कैलकुलेशन जिससे इस पीसी को समझ आता है कि हमेशा करूं ये रिक्वेस्ट विद इन माय नेटवर्क कि में आउटसाइड नेटवर्क ओके ये एंड ऑपरेशन करता है जो कि आपने में भी पढ़ा होगा ये वो छो between VCC and PS plus how AND operation is done by PC but with the result of this AND operation अगर एमएस रिजल्ट ऑफ कि आपका डेस्टिनेशन विद इन द नेटवर्क है तेल था ये मैक एड्रेस डेस्टिनेशन पीसी का एड्रेस जैसे हमने अभी केस इस वाले एग्जांपल में देखा इसको ये अपना इंटरनल नेटवर्क का था इसको समझ आया कि मैं इंटरनली नेटवर्क स्पीक सो this PC directly put the destination MAC address of the PC M को बराबर है PCU एड्रेस फील्ड हाँ इसको कैसे समझ आया कि आतुस BB MAC एड्रेस उसके लिए इसने कुछ रिक्वेस्ट की इसने कुछ अलग डेटा जनरेट किया which we will see in a while and it got to know कि M such MAC address BB and it put it into the MAC address block you think MU block और then the packet was forwarded मगर in case अगर मैं ये PC करूँ two networks is it a same network or a different network ये तो a different network so add operation में इसको समझ आएगा पीसी को समझ आएगा कि you should में पान नेटवर्क के या शुड कुछ नहीं ये किसी दूसरे नेटवर्क में है you should 2.1 खबर का नेटवर्क और उसका मैक एड्रेस कुछ भी हो सकता है मगर अमिस तमिस गर्ज क्या क्या मैं पान नेटवर्क अमिस तमिस गर्ज क्या तमिस क्या मैक एड्रेस अब उसको जाना है राउटर के साथ सो अगर 1.1 को पिंग करना है टू द डिफरेंट नेटवर्क वाई था ये डेस्टिनेशन मैक ना कि जहां जिस पीसी का जाना है उसके पास ना ये रखेगा इस राउटर का ये वाला इंटरफेस मैक अगर अथो आर सपोज के लिए अथ मैक एड्रेस आर सो जब भी इन पीसी को अपने नेटवर्क से बाहर जाना है दे विल पुट द डेस्टिनेशन मैक ये डिफॉल्ट गेटवे जो इनका होगा जहां से ये डिफरेंट नेटवर्क्स की तरफ जाएंगे उस चीज का मैक एड्रेस रखेंगे उस इंटरफेस का मैक एड्रेस रखेंगे अच्छा तरह समझ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन
अगर इसको इंटरनली कम्युनिकेट करना है, अगर इसको बाहर जाना है, अगर अमिस बाहर छु वह गसुन आर नश गसुन यह सोज गोड रिक्वेस्ट वो ओब्वियसली पहले स्विच के पास पहुंचेगी स्विच वुच आर कत स्विच आर तुल तो पैकेट कर फॉरवर्ड आर नश वंस इट इज रीच टू आर वुच कि मोन डेस्टिनेशन आईपी 2.1 तो ये बोलेगा कि ओके तो ये पैकेट पूरा मेरे लिए नहीं है आई हैव टू फॉरवर्ड इट टू द टू नेटवर्क ये जो टू नेटवर्क्स निश वात यहाँ पे अगेन देयर विल बी द चेंज इन दिस फील्ड यथ मज सोर्स आईपी वन वो तो अपना ही होगा ये 1.1 एंड डेस्टिनेशन आज 2.1 सोर्स मैक आस ये आर ना कि इस पीसी का सो वो यहाँ पे होगा जहां से इसको ये मिला एंड डेस्टिनेशन विल बी एच when you see reverse case the source will be 2.1 destination will be 1.1 source MAC will be h destination MAC will be this interface का ये MAC address destination this is how the packets are being generated. You think inside us them is as MAC address destination PCU. You think outside the network as destination होगा default gateway का जो कि इन जहां से ये बाहर जाएगा नेटवर्क में उसी इंटरफेस का डेस्टिनेशन मैप होगा मैंने तो इम्स क्या छपा एम्स पीसीएस के मैं कुछ डिफॉल्ट गेटवे वो हम सेट करते वी विल सेट दिस डिफॉल्ट गेट हाँ राउटर के पास भी होगा मैक टेबल राउटर के पास होता है आर्क टेबल राउटर के पास होता है राउटिंग टेबल राउटर के पास होता है पी आई एफ आई बी आप में चलता यूनिक टेबल पार्टी बिट पर भी है बट हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये थी जब यहाँ से जनरेट होगा पहला पैकेट इस वजह से ये मिस अब इस राउटर को देखना है डेस्टिनेशन यूज 2.1 2.1 क्या मैक एड्रेस वो राउटर ही देखेगा राउटर ते कर इत कन स्विच कर रिक्वेस्ट जनरेट टू नो द मैक एड्रेस ऑफ 2.1 हाँ तो ये राउटर इस टाइम पे जनरेट करेगा और रिक्वेस्ट विल बी जनरेटेड बाय दिस राउटर हम अभी आर पे आएंगे ठीक है सो दिस वाज अ मतलब पैकेट कित कन फिल गसान व्हेन द ट्रैफिक इज फॉर within the network and when the traffic is for outside the network this is how the things are generated और ये चीजें हम एज सच जितने भी मॉनिटरिंग टूल्स हैं उसी चीज से देख सकते हैं मे बी वी विल सी ओके सो वी वर ऑन द स्विच हमने देखा ये मैक एड्रेस के बेस पे ट्रैफिक फॉरवर्ड करता है नाउ आगे की दो तीन बातें जो कि हमें पढ़ द फर्स्ट जो कि हमने यहीं पे रखी दैट इज दिस हाउ विल द पीसी नो कि मैं डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है okay so let's make this diagram a little bit big एक है शेयर the request is ARP request source IP destination IP and source MAC and destination let's fill it again ping request yeah yeah so now ICMP ping uses ICMP protocol ICMP request yeah so when you source IP which is one ये कहते हैं source IP क्योंकि हमने इसको दिया destination IP कहते हैं क्योंकि हमने इस चीज के लिए रिक्वेस्ट की हमने पिंग में ये कमांड लिखी दैट द डेस्टिनेशन इज 1.0.0.2 वह सोर्स में कि तो इसका अपना है इसलिए इसको पता है सोर्स में क्या डेस्टिनेशन बैक हमने तो नहीं दी अब इसको कैसे समझ आएगा सो इट विल कीप दिस फील्ड ब्लैंक इनिशियली और इसके बाद एक चीज करेगा टू नो द मैक एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ये एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा विच इज कॉल्ड आर आर का फुल फॉर्म बायोलॉजी स्टूडेंट होने की आवश्यक याद होने जरूरत है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल एज द नेम सजेस्ट यू शुड करान रिजॉल्व क्या मैक एड्रेस ऑन द बेस ऑफ आईपी एड्रेस ये पैकेट था ये थी टू फाइंड द डेस्टिनेशन मैक इट विल क्रिएट अ one more it will generate a one more traffic which is ARP request ARP request must बनी इथे के लिए पैकेट बराबर ऐसी पैकेट बनेगा तथ मज रिक्वेस्ट ARP request ओके ARP request is a board bar header super अगर फुर्सत है ठीक है ARP request ARP request में क्या होता है इन सिंपल टर्म्स अगर वो वन ARP request मज मैसेज आ तथ मज मैसेज who is who is 1.0.0.2 tell me your man this will be the message in ARP request वो इतना डेटा ये
Who is 1.2? Tell me your MAC. Where source IP is 1.0.0.1, destination IP is 1.0.0.2. थेयो ना सर ये और रिक्वेस्ट हाँ सोर्स मैक is क्या एमएस पानुन ए destination मैक क्या है yes broadcast okay yes it is set on as a broadcast usually packet was switch which destination MAC has such a broadcast so it will transmit this data through all the interfaces guys ये इतना जो destination ही broadcast आमुत था once ये वात सारे interface kun युथी 2 निश वात I mean 1.2 निश युथी वात सो विच ये पैकेट है मैंने खुद क्या destination IP बुचुस ये क्या मांगा रहा है ये मांगा RF request ये दफा मैं tell me your MAC so there will be the RF reply from 1.2 so RF reply क्यों था so it's beautiful like this even ms atmos that is I am 1.2 okay it will be the R reply I am 1.0.02 and my mac is bb okay और यहाँ पे source IP क्या है इसमें इतना is interchange source IP will be 1.0.0.2 and destination IP will be 1.0.0.1 and here the source MAC will be जो इसका अपना है BB and destination MAC will be AA कैसे एमशन पर पैकेट का इतना it won't be broadcast source MAC and destination MAC ये मैंने एग्जांपल एक जगह दी but this is true for everything अगर आप इस पीसी को अपने डिफॉल्ट गेटवे का मैक एड्रेस जानना चाहेगा तो ये पीसी अब आर रिक्वेस्ट फॉर द तथ मज डेस्टिनेशन आईपी कुस लाइक डिफॉल्ट गेटवे which will be 1.2 1.3 whatever you have set the default gateway here by the way default gateway वो कि द गेटवे जहां से ये नेटवर्क अपने नेटवर्क से बाहर जाएगा दैट्स व्हाई अ गेटवे आप जो ऐड ऑन करने गेटवे इन सारे पीसीज पे अगर इनको अपने नेटवर्क से बाहर जाना है देयर कॉन्टैक्ट इज दिस आर ये वाला इंटरफेस इंटरफेस is ना gateway and we have to configure it it is pc का configure we have to configure this gateway as well ताकि मैं pc अंदर फिक्री कि अगर मैं बदल नेटवर्क का निश गसो मैं ये इंटरफेसेस निश वात फाइन सो दिस वाज द आरप रिक्वेस्ट वो यहाँ पे पहले ये इस पैकेट को उतरी रखेगा पहले आरप पैकेट जनरेट होगा इसलिए अगर तू लैब आसो कर एंड फर्स्ट पिंग जब आपने की होगी तथ फर्स्ट पिंग डॉट इट विल बी ड्रॉप्ड बाकी गसान पत सक्सेसफुल ये जो पहला वाला ड्रॉप हो गया ये करान आरप दैट मींस कि ये आरप करता है इट नीड्स टू रिजॉल्व द मैक एड्रेस ये हम अभी देखेंगे लैब सो दिस वाज अबाउट द आरप आरप वारियाह ब्रिलियंट प्रोटोकॉल वी नीड टू फाइंड ताकि ऐसा को फिल कर डेस्टिनेशन क्योंकि डेस्टिनेशन हम नहीं देते हैं वी नेवर प्रोवाइड डेस्टिनेशन युथी ते करान कह पैकेट जनरेट हम मैक एड्रेस नहीं देते हैं हम सिर्फ आईपी एड्रेस देते हैं कि चलो कुछ ही बहुत मैक एड्रेस से ऑटोमेटिकली रिजॉल्व करता है डिपेंडिंग अपॉन की नेक्स्ट हॉप क्योंकि हम डेस्टिनेशन मैक एड्रेस हमेशा डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस नहीं देते हम डेस्टिनेशन नेक्स्ट हॉप का देते हैं ऑलवेज गिव द नेक्स्ट हॉप का देखो इस पीसी को इस पीसी के पास जाना है एमशू नेक्स्ट हॉप यात्मस अब अगर इस पीसी को किसी दूसरे पीसी के पास जाना है यदि ये मैक एड्रेस ना कि उस पीसी का मैक एड्रेस ओके यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कैसे की गई ना वार वार मगर डायरेक्ट तमिस इसको पहले इस राउटर के पास जाना है राउटर सोच पाते तमिस अगर यहाँ पे कुछ कोई और राउटर होगा और फिर वो पीसी होता तो ये वाला राउटर पहले इस वाले राउटर का मैक एड्रेस देता इस इंटरफेस का मैक एड्रेस देता पत कर है ये बे और रिक्वेस्ट टू फाइंड द मैक एड्रेस ऑफ दैट पीसी तो ऐसे ये चीजें चलती रहती है वार वार ब्रोड को पका सो दिस वाज अबाउट लिटिल बिट अबाउट द स्विच अब देखो we have multiple मतलब to deploy this switch we have to consider multiple things कोई भी एमएनसी अगर आप देखोगे ना तछ आसान मिसाल ठीक है कि हमने ये लेट सपोज इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट रखा मगर अथ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में different teams the one which will be holding routing and switching the one when most networking is example बाकी तो चलता रहता है the team which will be handling security okay तो let's suppose कि हमने यहाँ पे दो further sub departments लिए inside our engineering department और obviously हमें इन दोनों का ट्रैफिक फिल्टर करना है ताकि ऐसा कोई कंट्रोल करे जो सॉरी वो अच्छु within one in building sorry within one team no क्या होने पे within one department
within one department اَسہِ چھُ further sub divide گوٚمُت اکھ چھُ team for routing and switching بیاکھ چھُ team for security तो ठीक है मे बी आप सोच रहे हो कि इस थाओ routing and switching اکھ switch लगित याथ में 7 एम्प्लॉय याथ में 7 एम्प्लॉय तो हम इसको एक स्विच देंगे इसको एक स्विच देंगे नो हार दे सकते हैं बट वी हैव टू कंसीडर अदर थिंग्स एज वेल आपको कंसीडर करना है कि वो तेल में याथ सित लागे टू वायर राइट एक तो हो गया ये दही चूंकि we our network are designed in such a manner कि अगर कहाँ चीज गो ना बंद fault tolerance है इमन में कि अगर कोई एक चीज बंद हुई we have a backup path towards it okay so you have to again make as a backup path okay tier 2 structure 3 structure brought but just to give analyze कि as a backup path there is something again added okay तो आप देख सकते हो तारों का गुच्छा हमने बिछाया और another thing you can do one more thing कि तुम थे आपको switch okay and you will virtually divide this switch आप इसी एक स्विच को वर्चुअली डिवाइड करोगे फॉर राउटिंग एंड स्विचिंग फॉर सिक्योरिटी गो या स्विचेस करो इस डिवाइड क्या था वो पता युथी इस्तेमाल करो ना डिवाइड सो दे विल एक्ट लाइक अ सेपरेट स्विच वन गए साथ इत कहीं मास they will act like a separate two switches euro is x network systems euro is base network systems and what about this अगर हमने ये दो डिफरेंट नेटवर्क्स में रखे ये वो इस ब्रोन वर्ड करो स्विच डिवाइड सो फर्स्ट कंडीशन हमें क्यों स्विच को डिवाइड करना है ताकि we will reserve few things we will reserve the wiring charge we will reserve the I'm खतर जो ये जगह खाएगा ना इतनी सारी वायरिंग वहां पे we will preserve these things another thing you can do it like कि हमने एक बड़ा स्विच लाया और उसमें 100 पोर्ट्स है पंचा दीते राउटिंग एंड स्विचिंग पंचा दीते सिक्योरिटी सो वी प्रिजर्व a little bit cost here या सेपरेट अक स्विच आनो तो हुथी डिवाइड एक बड़ा ही स्विच लाया और उसको डिवाइड that's one more reason although we have switched with less number of ports but this is more cost efficient secondly अगर बताए वनो ना real time example आपको switch ना सब we have a stack of switch कुंती कंपनी में अगर गसो there will be the stack of switch या तो दोन हो या तो त्रेन हो the stack of switch what I mean is कि there will be multiple switches let's say two switches are there and they have been stacked यम छ तित कन वर्क करन जान छ अकुई switch again why because of fault tolerance कि अगर अक स्विच गो डाउन somehow ब्याक स्विच रोज तो फंक्शन करा और नेटवर्क डाउन नहीं हो वन अगर स्विच निमो या निमो अलग स्विच या तेल चोर स्विच आने ताकि फॉल्ट टॉलरेंस हको थे सो दीज नंबर ऑफ रीजन दो तीन रीजन जो मैंने बोले फॉर दैट रीजन हमें एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की स्विचिंग में विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ VLANs VLANs क्या करा सिंपली इट विल डिवाइड अ वन सिंगल स्विच इनटू मल्टीपल स्विच लेट्स डिस्कस VLANs divides switch virtually into multiple switch बेसिक डेफिनेशन थे जो ध्यान जो हमने बोला अगर when you virtually ना मल्टीपल स्विच को हर का स्विच डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क सिस्टम अगर एक स्विचेस बनाए जो स्विच वन नेटवर्क सिस्टम ब्याक टू नेटवर्क सिस्टम सो दे विल बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट नेटवर्क्स अभी तक जितना हमने पढ़ा बिफोर गोइंग टू द VLAN एक स्विच कौन सा स्विच लाए लेट्स टेक दिस स्विच ओके दिस इज द स्विच और हम कुछ पीसीज लाएंगे यहाँ पे ये पीसी ये ब्याक पीसी let's take this thunderbolt I mean automatic wire ठीक है अस थाओ कि तुम एक्सी नेटवर्क क्या कि एक्सी स्विचेस सिट राउटर वाउटर की भी जरूरत नहीं है क्यों नहीं जरूरत है क्या कि विद इन द नेटवर्क अत राउटिंग की जरूरत देखो यहाँ पे एक बात ये करो ये पे स्विच इज अ प्लग एंड प्ले अस कोर स्विचस पे कहीं कॉन्फिगर हमने सिर्फ अटैच किए दो पीसीस दपान डिफॉल्ट गेट पे देर आर टू मोड स्टैटिक तो DSP अभी हमने पढ़ा ही तो स्टैटिक
डिफॉल्ट गेटवे क्योंकि अभी हमें नेटवर्क के बाहर जाना नहीं, वी वोंट सेट इट। एम पथ गस इंटरफेस एंड फास्ट इथरनेट, क्योंकि हमने फास्ट इथरनेट 0 पे अटैच किया हुआ है, सो वी विल गिव आईपी एड्रेस। IPv4 देंगे हम 1.0.0.1, तो ये था डिफॉल्ट सबनेटस में, दैट इज /8 युति कोर में कौन बेमा कोर के फाइन। आप जाएंगे इस वाले पीसी पे, सेम नेटवर्क में रखना है, दैट इज 1.0.0. with the keen corners mark or key nothing। अगर इस स्विच पे जाएंगे एंड CLI पे जाएंगे, देयर विल बी नथिंग एज ऑफ नाउ। इनेबल में मोड, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, सो अभी हम पे प्रिविलेज मोड में। एंड इनसाइड द प्रिविलेज मोड अगर हम चेक करेंगे शो मैक एड्रेस, कैसे ना मैक एड्रेस कहाँ से, मैक एड्रेस टेबल के विश एज सच मैंने बोला कि एज एक स्विच पान एक करानी चीज जनरेट, सो इसने एक स्विच को डिस्कवर किया है, पोर्ट F0/2 की एम कोर में हूँ डिस्कवर, लेट से अभी इसने एक ही डिस्कवर किया, बट लीव इट। इसका सो पीसी जीरो पे मैं टर्मिनल खोलूंगा नहीं, कमांड प्रॉम्प्ट खोलूंगा एंड आई विल पिंग टू आवर अदर 1.0.0. नो राउटिंग नीडेड हियर, कैश की शिम्स विद इन द नेटवर्क, डेस्टिनेशन विल बी द मैक एड्रेस ऑफ दिस, जो कि अभी इसके पास है नहीं इस पीसी के पास, एंड इट विल डू द आर रिक्वेस्ट पथ करी पिंग और दैट इज अ, ये इस पीसी का पीछे का काम है, यू वोंट बी एबल टू सी इट ड्यूरिंग द पिंग रिक्वेस्ट। हाँ अगेन पैकेट कैप्चर्स उठाओ और देखो, वी विल सी इट विद टाइम। मैंने अगर इसे यहाँ पर कसो मे बी, अब यहाँ पे दोनों का मैक एड्रेस है, ओके। ऐसा कोई शो और विचित, मगर अख चीज कि ये और जल्दी मकलान विद इन फ्यू सेकंड इज किया, तो ये इस स्विच पे पकड़ना मुश्किल है। अभी देखा स्विच को हमने कुछ कॉन्फ़िगर नहीं किया डायनेमिकली, इवन हाँ मतलब टाइप डायनेमिक, क्या मैंने डायनेमिक सीखा है। डायनेमिक क्या को मतलब इसने आरप किया है यहाँ पे, और इसको समझ आया कि F0/1 की जो आख पीस, F0/2 की जो बैक पीस थी। वन मोर थिंग जो कि आपको याद रखनी है, स्विच के ये मैक एड्रेस टेबल जो ना you should delete गसा after 300 seconds, your default value after 300 seconds delete this table or again generate this table, but you can change the time, तो एक थे 3 मिनट थे 8 मिनट थे, तो वो सब आगे देख लेंगे। सो दिस इज सो फॉर जो हमने दंद्रोलॉजी पढ़ी ना, ऑन प्रैक्टिकल दिस इज द थिंग। मगर क्योंकि आप लोगों को विजुअलाइज करना है ताकि तो है क्यों पता जाके ट्रबल शूटिंग करे, या इसमें बहुत ज्यादा एडवांसमेंट आती है, मतलब आजकल की दुनिया में स्विचिंग ही ज्यादा चलती है, कैसे अच्छा लेयर 3 स्विच, तो हम राउटिंग भी स्विचिंग पे ही करते हैं। हर का मतलब स्विचिंग इज सो वास्ट एंड एडवांस कि अत में कंफ्यूजन गसने ज्यादा चांसेस, दैट्स व्हाई इतनी बड़ी थियरी हो गई इस क्लास की। ना ना नहीं तो जितना हमने पढ़ा लैब पे वो इतना ही छोटा चीज थे, देखने के लिए तो सिर्फ इतना ही, एक क्या कोर है मैक एड्रेस टेबल जनरेट, नाउ हाउ इट जनरेटेड यू गाइस नो इट। एंड अभी हमें, अब हमने बोला कि एस1 आपको स्विच कैसे एच कंजूस, और इसी एक स्विच को हम वर्चुअली डिवाइड करेंगे ताकि इस बना होता है स्विच एच कंजूस के, यू नो द रीजन, दिस इज वन डिपार्टमेंट, दिस इज अनदर डिपार्टमेंट। अब चूंकि डिफरेंट नेटवर्क्स है, आप सोच समझो यहाँ, चूंकि डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, या वन या टू डिफरेंट नेटवर्क डिफरेंट सूचना वर्चुअल आप लोगों को समझना है कि अख स्विच कथो में वीलन ओके, आप लोग इस चीज को दिमाग में समझो, ये स्विच अख सब वो ईद का काम बस ये करन बोल। ये है तो एक ही स्विच, बट वी आर वर्चुअली डिवाइडिंग इट, चत फुटरावा मंजबाग या कोनस में से खुश करते, और एक को हम रखेंगे VLAN 1 में, दूसरे VLAN 1 जो डिफॉल्ट वैल्यू, एक को रखेंगे VLAN 2 में, एक को रखेंगे VLAN 3 में। यू सी VLAN 2 ना, आप इसमें पोर्ट्स कुछ ऐड करोगे, यम जानते या VLAN 2 मस करन ट्रैफिक जनरेट, और कुछ रखोगे VLAN 3 में, यू आर वर्चुअली ब्रेकिंग द दिस स्विच। वन जानते अकुई स्विच, मगर तुम कर कंसिडर यम स्विच इत अलग अलग स्विच, आप इनको करना है ना आपस में कम्युनिकेट, क्या यह सेपरेट स्विच सेपरेट स्विच, दिस इज इन डिफरेंट नेटवर्क, दिस इज इन डिफरेंट नेटवर्क, इनको आपस में कम्युनिकेट करना है ना, दो यू नीड अ राउटर हियर नाउ, ओके, जो कि एक तरफ से इसके साथ जोड़ के एक तरफ से इसके साथ जोड़ के, मगर ये बात इत दो
एक तरफ से इसके साथ जोड़ के एक तरफ से, so you can either attach a two wires or you can attach a one single wire to this switch. और हम इसी एक इंटरफेस को डिवाइड करेंगे into two things virtually. Of the moemis, of the moemis. So this is a thing what we will do here. Go to go here. अगर हम इस टाइम पे देखेंगे, इस स्विच की हालत अगर हम इस टाइम पे देखेंगे, इसलिए लिखो यार शो इंटरफेसेस, you go गलत, ये शो VLAN brief छा, हाँ VLAN briefs में शो बना के वंकस शो VLAN अख मतलब सोरी switch एक्सी VLAN में, that's what is making it as a single switch. सारी switch एक्स VLAN में और ये सारे ports जो है उसी एक VLAN में. I'm much about 1002 3 4 5 with time CCNA में ये सब नहीं है. So just consider on this thing कि VLAN one is mentioned serial port. What I need to do first, I will go to configuration terminal. I will divide the switch. One is बना VLAN 2, okay, and से बना VLAN 3. कुछ VLAN बने में 2 to 3. अब अगर मैं करूँगा show VLAN brief again, VLAN 1 इसमें सारी पोर्ट मगर यहाँ जो VLAN 2 to 3 थी और इन दो VLANs में अभी कुछ नहीं है. ये मैंने VLAN mention हुई. I have to manually put these ports into these VLANs. F0/1, F0/2 you use. F0/1, F0/2. Only these two are used. अगर मैं बेते आसान use, okay, let's take this. एक issue ब्याक PC same department and let's attach it to here. Go the PC choice. Okay, now we have port F0/1, 0, 2 and /3. 1 and 3 is in one network and 2 is in two network. Here is the thing. Actually, Actually, 1 and 3 in VLAN 2 and 2 in VLAN 3. आपको nomenclature issue but leave it. हम जाएंगे इंटरफेस, या तो हम एक एक करके कर सकते हैं. लेट्स सी F0/2. Okay, here we need to understand few more things before configuring the these ports. वो ये है कि you have to understand the type of ports in switch. Type of ports in switch. زٕے چھِ زیادٕ چھُنہٕ کینٛہہ کھوژُن چھُنہٕ کینٛہہ یہِ کیٛاہ چھُ وَنان اکھ چھُ ایکسس پورٹ بیٛاکھ چھُ ٹرانک پورٹ. with time یوٗتاہ تُہۍ بٔڑۍ بٔڑۍ گٔژھِو نیٹؤرکِنگ منٛز یتھ کھُلن واریاہ ڈیفinition but as of now remember it's like this. Access port یُس چھُ نہ port used for okay ऐसे समझते जो trunk port है ना only used between two switches. अगर जो switch आसान ना पावर में कनेक्ट डायरेक्टली कनेक्ट we keep the port as a trunk. अब वो क्यों रखेंगे, टेक्निकलिटी क्या है इसके पीछे वो हम देखेंगे जब आप दो स्विच लगाएंगे. एक्सेस पोर्ट यूज्ड विद ऑल अदर डिवाइसेस लाइक पीसीस राउटर्स, बस फायरवॉल अगर है तो वो. तो एक्सेस पोर्ट पीसी का होगा, ट्रंक पोर्ट अगर दो डिफरेंट स्विच का होगा. टेक्निकलिटी क्या है इसका रिमोट एक्सेस या कैश रिमोट ट्रंक, व्हाट इज द टेक्निकलिटी हम देखेंगे व्हेंस वी कॉन्फ़िगर टू स्विच. और थोड़ा बहुत VLAN का ज्यादा कॉन्सेप्ट है क्या इसकी अच्छी टेक्निकलिटी ये कि हु अख कर VLAN ट्रैफिक फॉरवर्ड ब्याक छु करान VLAN ट्रैफिक फॉरवर्ड की. टेक्निकलिटी वो आराम से देखेंगे अभी. तो हमें यहाँ पे ये पोर्ट किस चीज के साथ कनेक्ट है, पीसी के साथ. सो वी विल गिव मे खबर कम कमांड यार. सो वी विल दपो स्विच पोर्ट ना अमुक मोड स्विच पोर्ट का मोड है एक्सेस. ओके and we have to put it in switch port access VLAN कथ में छु थावन ये इंटरफेस F0/2. so we will put it in VLAN 2 enter. ठीक है, हमने VLAN क्रिएट किया, VLAN में पोर्ट को लगाया, पोर्ट थो मोड कुछ एक्सेस पोर्ट. क्यों, क्योंकि ये पीसी टेक्निकलिटी वन विथ एग्जिट. नाउ if you will तथ कमांड पींच VLAN 2 VLAN 3 that's it. just type मैं बने let me show you. अगर do show VLAN brief
वन हाई आपको वीलन जो पानो डिफॉल्ट ओस ये वीलन 2 हमने क्रिएट किया और अभी हमने इसमें सिर्फ एक पोर्ट डाला विच इज f0/2 अगर मैं ब्याक ना बनाऊं इनके 1 2 3 अगर वो बनाना फोर्थ मैं लिखूं सिंपल वीलन फोर्थ एंड इट विल क्रिएट अनदर वीलन to show VLAN brief, it will create an okay. Just simple one command VLAN 4 VLAN जीता. You can even write a range VLAN range mission पाई के या कुछ आज का सोचा पता नहीं. You need to see that. Okay, check it on Google की कितने जिस range एक ही साथ में 5 VLAN है काम बनाई. तो हमने अभी 2 में f0/2 बनाया. Now we will go to these two ports. ऐसा को कि दशवनी port है ना same configuration करें. हम दशवे थाविन VLAN 2 असमस and they are both access ports. Since both have same configuration, I will do them at the same time. I will type interface range f0/1 f0/3. Ah. So switch port mode access and switch port access VLAN 1 no sorry 2 and show VLAN brief. Now you will see here many things. One you send to OS default. Two में हमने like ये मैं किसी टू उसमें okay we have to keep it in 3. Sorry f0/2 उसमें चुका सुन. Switch port mode access तो हमने दिया but let's give it one more time and switch port access VLAN किस में डालना है 3 में and show VLAN brief. So here we are VLAN 2 में 2 VLAN 3 में 3. Now अब चूंकि डिफरेंट नेटवर्क में है ये शायद जो इसका है 1.1 इथावन ये विचार इथावन 1.2 कॉन्फ़िगरेशन ईथरनेट फास्ट ईथरनेट इथावन 1.0.0.2 ओके और हम इसको रखेंगे अब 2.1 में इसकी सेपरेट स्विचेस इतने ओके इस चीज का ख्याल रख अगर बह कर ये पीसी पे या पीसीएस पिंग विल इट हैपन शाबाश आई नीड आंसर्स सीरी त्रियो माइक तो वनो हाँ इस पीसी को अगर हम पिंग करेंगे विल इट गो क्यों होगा क्या इसका सेम क्या है which was a major that 10 1.0.0.2 okay what about this 1.0.0.1 ping 1.0.0.1 okay it's going याद कर देंगे चलो था okay now it's happening हमने इससे पिंग किया इसको so it is going what about अगर मैं इस 1.2 से पिंग करूंगा 2 डॉट कैसा होगी क्यों नहीं होगी yes exactly now because they are in different networks और different networks को communicate कराने के लिए we need a router आजकल L3 switch है so routing is also done by router अच्छा करो नहीं routers में but as of now we'll keep the things separate ताकि as के visualize network समझा तरह का so we will go to this router and we will configure this interface या तो हमें दो इंटरफेस जोड़ने इसके साथ और we can attach one interface और इसको सब डिवाइड करेंगे depending upon this कि आप लोग कैसे कैसे okay so I will show you the things here ताकि ये guys concept clear आते हैं we have different ways to configure the this type of switch यात मज़े से VLAN कोड extra let me show you different types type go कि एक router and you have created जितने भी VLAN है इसमें आप उतने वायर्स अटैच करोगे अगर जो VLAN क्रिएट करें जो वायर अटैच और एक स्विच है जितने भी VLAN है you will still connect it with the router with only one switch only one interface और फिर इस इंटरफेस को आप सब डिवाइड करोगे into two okay yath model is one router run stick model maybe you will see it somewhere that is one oh ये क्या issue की router run
स्टिक मॉडल राउटर स्टिक मॉडल गो जन ये राउटर एक स्लोर पे खड़ा दैट्स इट मतलब क्वेश्चन पट करो सो ती virtually this interface is divided into two. This is same like this मगर ये एक सी वायर पे एस virtually interface को तो ये क्या मजबूरी पे एस पे ये कर again खेल छे कि ये छ आसान redundancy you don't have only one links attached you have multiple links attached țोर link कर attach they will act like a सिंगल वायर और इस वायर को मैं फिर से मल्टीपल करूंगा इनटू टू थिंग्स ताकि अगर यस मज अख या वायर्स गसन डिस्कनेक्ट और वट एवर द रीजन सो नेटवर्क गस डाउन क्या बट अभी हम सीसीएनए लेवल पे लेट्स बी ऑन सीसीएनए लेवल तो ये router on stick model one interface is subdivided into many interfaces और आगे जाके आप देखोगे ये one interface one interface के असली पिट के वारिया for the bandwidth गसा increase we will see it we will see अगर हम इस CCNA में हम पढ़ेंगे LACP switching में same cases with the routing मगर चूंकि different different devices या में aggregate गसा differently इसलिए ये case CCNA में किया so if you have two switches connected with each other like this we can connect them on multiple things but ये हम आगे जाके देखेंगे no worries so let's rewind a little bit हमने देखा why we need a switch need the some multiple host to X network to connect to those multiple hosts we need something की जो कि इनको internally communicate करवाए that's why we need a switch क्योंकि कौन चीज तेम चीज switch पर हम पूछे कि how the MAC address is filled उसके लिए ARP generate होती है ARP is a type okay this is a normal ARP that was a proxy ARP purchase on a gratuitous ARP purchase on a gracious ARP whatever you want to call it so proxy ARP and gracious ARP these are two major types in ARP and you have reverse ARP inverse ARP so आगे कितना भी मांगे दे सेशन हसा पारने जरूरत क्या and then we saw the VLANs what is the need of VLAN अगर कहाँ पर what is the need of VLAN so you can give multiple answers in तो कि मैंने ये थी कि अच्छो आप बोर्ड स्विच तथ रूद के इंटरफेस यलाई in order to occupy those interfaces हमने एक ही स्विच को मल्टीपल स्विच में डिवाइड किया ताकि सारी इंटरफेस गसन कवर another अगर तुम टेक्निकल टर्म वन ना कैसे व्हाट इज अ VLAN अमिश टेक्निकल डेफिनेशन छ यस okay the technical definition for it is it divides the broadcast domain okay so when agar kaha interviewer what is a VLAN VLAN is a technology which helps us to divide the broadcast domain on the switch so क्या मतलब वो मतलब जो तो साहब बस अभी अगर ये करूँ तो कंसिडर स्विच ओके या छाप लेके तो करूँ कंसिडर स्विच अगर इस पे ब्रॉडकास्ट मैसेज आएगी विद द डेस्टिनेशन एफ एफ ये तो यह स्विचस पे ब्रॉडकास्ट मैसेज ही ना ये कर यथ पे सारी ब्रॉडकास्ट सारे पोर्टन पे ब्रॉडकास्ट बट आफ्टर VLAN when you configure the VLAN on a switch it will divide this broadcast कोता है उसने एक सी ब्रॉडकास्ट में वहीं अगर यह पोर्टस पे ब्रॉडकास्ट ही ना ये सिर्फ ये चौथ में एक पार्ट ऑफ VLAN में सिर्फ वो ब्रॉडकास्ट होगी ना कि पूरे स्विच पे दिस इज अ टेक्निकल इंटरव्यू खुश है I'm such a पाई ब्रॉडकास्ट डोमेन क्योंकि इसमें आपको पढ़ना है ब्रॉडकास्ट डोमेन तो कोलिजन डोमेन वो हमने पढ़ा बट मैं कभी बोलूंगा स्पेसिफिकली व्हाट इज अ ब्रॉडकास्ट डोमेन एंड द कोलिजन डोमेन इन दीज थिंग्स okay so मैंने बोला ARP पे we have a type proxy ARP and glaciers ARP with coming lectures वो चीजें कवर होंगी along with examples and हमने देखा VLAN how to create a VLAN और VLAN में जो कि आपको याद रखना है that is access port है trunk port trunk UTS trunk port है समझ access port है पाने समझ trunk port we will see with along with switch so देखो क्या होता है that we show you break में 5 मिनट आ रहा let me show you one thing here let's enjoy let's save it switching CCNA day let me create another page ये है एक स्विच ये है दूसरा स्विच ये है तीसरा स्विच डज नॉट मैटर VLAN चुकाना चुका समझाने के लिए दिस इज एन एग्जांपल फॉर समझाने के लिए जो कि HTTP के लिए बहुत ज़्यादा कॉमन है ये एग्जांपल है कॉमन ट्रस्ट में आजकल यम चीज चलान मार्केटस में बट यू स्टिल नीड टू नो दिस प्रोटोकॉल व्हिच इज कॉल्ड HTTP
आजकल यीतियाह ति केस छुस बह हैंडल करन तिमो छ आसान बाय डिफॉल्ट एचटीपी थोमुत बंद कर सॉरी बाय डिफॉल्ट छ आसान यलै तिमो छ आसान जानबूझ के बंद थोमुत कर बिकॉज ऑफ टेयर थ्रू आजकल जो लीफ एंड स्पाइन मॉडल एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मॉडल तथ में विश क्या खुलो तथ में बंद पे यह जरूरत तथ पे बट यू स्टिल नीड टू नो अबाउट दिस प्रोटोकॉल वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल बेशु पाने पका यह तुम कॉन्फ़िगर कर मगर तुलो समझने के लिए आपको बहुत चीजें समझने इस चीज में ये स्विच कनेक्ट पान में लेट्स से हर कह डिवाइड विद VLAN 1 VLAN 2 ये VLAN 1 VLAN 2 सॉरी 2 and 3 VLAN 1 बाय डिफॉल्ट यह क्या मस मस यथ में VLAN 2 यथ में VLAN 2 VLAN 3 यथ में VLAN 2 VLAN 3 अगर मैं ये पीसी का ओके इसने 20 नेटवर्क लेट्स कीप इट इन 20 नेटवर्क इसको सुलाया का 20 नेटवर्क 20.3 shims pieces तो योर की VLAN 3 और वहां पे 20.4 है और इस पीसी को पिंग करना है 20.4 को ये अमि खतर सेम नेटवर्क इन डिफरेंट नेटवर्क /8 वैल्यू जल्दी इफ्तारा वो बोलो बोलो जल्दी इज इट सेम नेटवर्क फॉर हिम और अ डिफरेंट नेटवर्क हो सवाल पूछती सोली okay so what I am telling कि अच्छु पीसी ऑफ इतनस ओके लेट मी रिपीट ऑल द थिंग हमें हमारे पास किसी सोच को शेंगे आप सोए थे VLAN 2 यहाँ पे है VLAN 3 ओके ये टिश्यू VLAN 3 VLAN 2 VLAN 3 तो ये टिश्यू VLAN 2 VLAN 3 अब एक पीसी इस VLAN 3 से इस पीसी तक जाना चाहेगा क्योंकि यम दशवे VLAN 3 में दे आर बोथ इन 20 नेटवर्क यम 20.1 यम 20.2 प्रोवाइडेड कि यह बेकिस स्विचस पे कॉन्फ़िगर मसल तुत यह 20.4 अब इस पीसी के लिए इस पीसी को पिंग करना है टू दिस 20.4 इज इट इन द सेम नेटवर्क ऑन अ डिफरेंट नेटवर्क ये species or same species is it in same network or different network हाँ हाँ same network it is in a same network because this is देखो दो चीजें अक्ष 20/8 ये 20/8 दयम चीज ये सेम स्विचेस पे आई के साथ ये VLAN 3 ये दशवे सेम अब देखो यहाँ पे जो कनेक्शन मेथड है ना यहाँ पे this connection method which is connecting these two switches they have to act like a single switch zan ki shi yi VLAN yath VLAN as connect how will that be possible so guys possible tell you ye wire to VLAN hack it will take the traffic along with the VLAN on that's only how it is possible कि हम VLAN hacker पार में communicate करें अगर now see it like this ये 20 कैसा generate करना ट्रैफिक जनरेट एक तो अपना है लेट पिंग रिक्वेस्ट एंड देन ऑल दोस मैं सिर्फ लिखूंगा ये यू विल पिंग रिक्वेस्ट एंड सोर्स आईपी तो डेस्टिनेशन आईपी यू नो 20.1 as source 20.4 as destination once source MAC it will be a destination MAC it will generate an ARP request but let's suppose कि इसको पता है इस टाइम ठीक यह था एसबी फील्ड which is in मैं आपको दिखाऊंगा ये चीज लेट मी शो यू अथ वनान ईथरनेट फ्रेम फॉर्मेट एगो प्रो वन ये थयो यथ नजर यह कुछ डेस्टिनेशन एड्रेस सोर्स एड्रेस कुछ एड्रेस मैक एड्रेस अच्छा प्रीएम्बल एसएफडी डेस्टिनेशन एड्रेस सोर्स एंड लेंगे डेटा तो सीआरसी ओके लेट मी शो यू नाउ दिस वन जो कि आजकल यूज हो रहा है प्रीएम्बल ये एसएफडी योर तन सेम destination mac source mac it is same but tag optional this tag is your VLAN identifier यह बे चीज which is VLAN ID VLAN ID इसमें सही बात VLAN 3 ट्रैक
वो इस स्विच को ये ट्रैफिक हर किसी स्विच पे पास करना है along with this VLAN ID यम स्विचस गस तरन समझ कि मैं कत में ये ट्रैफिक त्राउन ये मैं VLAN 3 में त्राउन कि मैं VLAN 2 में त्राउन to that's why we need trunk link to connect to multiple switch अगर जो switch आसान पान में connected this is your trunk link तो trunk link की खासियत ये है इस तुलानी VLAN tag पान से access port ये VLAN tag आप ये नहीं लेगा switch करान within a single VLAN अगर VLAN 2 में आसी तो multiple devices थावे you don't need to send the VLAN tag in this VLAN 2 that's why you will use an access link अवे तो इस उतना PCN कुछ link attach कुछ port mode attach that was an access port but since you have to send the VLAN information as well اخ lagan a header which is a VLAN header VLAN identifier it's not always used but if it is used it will be used so from this switch to this switch ये switch पर ट्रैफिक नहीं है सुनिए along with VLAN identifier और जब वो इस switch के पास पहुंचेगा ये switch कैसे समझता हूँ मैं ये VLAN 3 में त्राउन कि इसमें VLAN 2 में त्राउन वो इसको कैसे पता चलेगा it will be with the help of this VLAN identifier okay but now ये एग्जाम्पल मैंने थी इस चीज के लिए okay let me delete all things now it does not matter VLAN कतः थी शायद attached the thing is here समझो कि यम छ त्रे switch पाने connect नीव सा एग्जाम्पल याद पेट ये स्विच ये पीसी छ करा सॉरी ओके इसको किसी पीसी के साथ स्विच या पर कुछ पीसी मैक एड्रेस चाहिए ओके दे आर इन सेम VLAN लेट्स से कि आचुन VLAN मिल करती दे आर जस्ट स्विच अगर इन सारी स्विच दे आर इन सेम नेटवर्क राइट कत से समझदार अगर ये स्विच आपस में कनेक्ट है ये आसान सारी एक्सी नेटवर्क्स में लेट्स से दे आर ऑल इन 20 नेट या 2 नेट कैसे कि पान में कनेक्ट विद ईच अदर एंड चूंकि स्विच है दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर दे आर ऑल इन सेम नेटवर्क यू शुड राउटर क्या कि हर का इंटरफेस अलग अलग दे आर ऑल इन सेम नेटवर्क यम्स पीसी पिंग करूँ तो दिस पीसीबी और इस पिंग को सक्सेसफुल होने के लिए इट नीड्स टू जनरेट एन आरप रिक्वेस्ट युथी आरप रिक्वेस्ट क्या है when you say ARP request destination में क्या if you remember अच्छा सम broadcast युथी ये broadcast message या switches पे words broadcast message ये ब्रॉडकास्ट कहाँ कहाँ से करेगा ये कर सारे इंटरफेस के तथ में से ये इंटरफेस तथ में से ये इंटरफेस यहाँ से बुतुल कलर है यहाँ से ये जाएगा इसके पास वो चाहिए योर ये कर सारनी तो सोच यपर सोच यमिस नश ये यमिस नश वो ये सोच यपर अब देखो यमिस स्विचस ना यपर ब्रॉडकास्ट मैसेज यहाँ से पहुंच के ये कर यपर ट्रांसमिट ये कर यपर ट्रांसमिट वात ये बे अमिस नश गो यमिस नश वो वापस अख वो ब्रॉडकास्ट मैसेज यपर ब्याक वो ब्रॉडकास्ट मैसेज यपर अगेन दे ट्रांसफर जहां से मैसेज आती है वहां से इसको वापस नहीं भेजते हैं यह गसान बाकी अलग सारनी इंटरफेस इट विल ट्रांसफर दिस टू यहाँ से तो बासान गसान क्या व्हाट इज हैपनिंग हियर ये बस भेजते जाएगा this there will be a broadcast storm in this ये पाके तौर जहां तक कि इन सारे switches की memory buffer CPU gets full and ultimately the switch will reboot on its own I can broadcast message on broadcast storm all the switches अगर you यथ हिसाबस में कनेक्ट किस हिसाब इस हिसाब में you have another example of broadcast storm which is commonly used अभी भी ऐसी चीजें कही गई अगर जो स्विच पान में गए इनको आपस में रिडंडेंसी के लिए दो लिंक्स अटैच होंगे ताकि हम रोजान हमेशा कनेक्ट इवन दो अगर आप गैस बंद अनदर विल कीप द ट्रैफिक ऑन ठीक है हमने रिडंडेंसी लाई मगर आज सेम केस अगर यहाँ से ब्रॉडकास्ट मैसेज आई इट विल बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम दिस साइड एंड दिस साइड आल्सो इट्स ना ब्रॉडकास्ट मैसेज अब जो इस स्विच के पास यहाँ से ब्रॉडकास्ट मैसेज है सुकरिए आपको तो ब्रॉडकास्ट और इस स्विच को जो यहाँ से ब्रॉडकास्ट मैसेज सुकरिए आपको तो ब्रॉडकास्ट अब इसके पास भी आई यहाँ से भी ब्रॉडकास्ट यहाँ से भी ब्रॉडकास्ट मैं कह ब्रॉडकास्ट यहाँ पर ये कर यहाँ पर सो अगेन द लूप विल बी फॉर्म्ड and there will be the broadcast storm and
जब तक इसका सीपीयू बफर रैम सारी गैस ना फुल, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली मैसेज जाएगी जाएगी, इट विल कीप इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग एंड अल्टीमेट द स्विच विल रीबूट। ये लूप बचने के लिए यू हैव द प्रोटोकॉल एसटीपी। अच्छा ने लैब की क्या इसकी शसम बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर करे। हाँ मगर लैब है इसके लिए क्या इसकी तू तहत त्राउन नहीं अलग क्या थी ना सर। थ्योरी वन वो पागा तुम प्रैक्टिकल। अच्छा कनेक्ट कनेक्ट एंड कनेक्ट। व्हाट इज द लाइट ऑन द इंटरफेस। सुनो यार ऑप्शंस अभी क्या है देखो अभी क्या है। एम्बर ऑरेंज वट एवर यू टेल। ये प्रोसेस या फिर टाइम लगा। ओके लेट इट हैपन फिर मैं बोलूंगा। चलते जाओ ओके दीज आर ग्रीन दिस इज ग्रीन दिस इज ग्रीन दिस इज ग्रीन एंड वन इज एम्बर। क्या टाइम लोग ना क्या कैलकुलेट करना यमो कोर याथ में इलेक्शन उस इलेक्शन में इन्होंने एक को मास्टर बनाया सोन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट उस प्रेसिडेंट बनो उसके दोनों पोर्ट्स ऑन होंगे। मे बी इन दिस केस दिस विल बी द करा एग्जांपल हम देख सकते हैं वो हम भी देखेंगे। लेट्स से दिस इज द प्रेसिडेंट एमस वोन साथ है इस प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी है यह है एम शुदा शिपुट फॉरवर्डिंग ओके नाउ दिस स्विच एमएस स्विचेस नियरेस्ट जो भी इसका नियरेस्ट पाथ होगा टुवर्ड्स द प्रेसिडेंट वो ये ऑन रखेगा। लेट्स से दिस केस में व्हिच ब्लॉक लेट्स से दिस इज द प्रेसिडेंट और इस स्विच के पास जो भी बेस्ट पाथ होगा यहाँ तक पहुंचने के लिए वो ये इसको उस ब्लॉक में फॉरवर्डिंग में लेगा। ओके तो इसने ये वाला फॉरवर्डिंग लिया ये मैं स्विच कुर्ती जो इसके पास बेस्ट पाथ होगा टू रीच दिस स्विच ये उसको उस पोर्ट को ऑन रखेगा इसने भी ये ऑन रखा। आज बचे ये दिस पोर्ट है दिस पोर्ट अगेन देयर विल बी इलेक्शन फर्स्ट इलेक्शन जहां पे इन्होंने सिलेक्ट किया कि कुछ बेंसेस या टोपोलॉजी मस्ट प्रेसिडेंट उन्होंने प्रेसिडेंट सिलेक्ट किया। What Korimo decide which will be the best path to reach to this president? Korimo best path president. आज बचो ना आपका आज को बे इलेक्शन बोलो और इस इलेक्शन में जो जीतता है दैट विल बी द फॉरवर्डिंग पोर्ट और जो हारेगा इस वाले पोर्ट इलेक्शन में उसको कैसे बांध मतलब देयर विल बी नो लॉन्गर ब्रॉडकास्ट क्योंकि खुद के सही डायग्राम क्योंकि once there will be the broadcast from this side you show is yemis you show is yemis here it will be blocked यहाँ से ये इसको जाएगा तो ये इतना शीप इतना पोर्ट इतना जुबान इट इज ब्लॉक्ड। ठीक है तो हो गया हमारा रूप प्रिवेंट ये गाइस हमेशा हमेशा का इतना क्लोज देखना ये सोच यहाँ पर इट विल बी बंद ये सोच यहाँ पर बात ये से इट विल बी बंद। फाइन अब ये इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है वी विल सी इट इन फ्यूचर मतलब कल देखेंगे बट हियर आर फ्यू कमांड्स टू रिमेम्बर। enable show stp sorry I'm sketching show spanning tree summary show spanning tree ये दफे समझता रहो क्या brief चा कुछ show spanning tree okay spanning tree enabled protocol यहाँ तो this breach is a root मतलब ये समय ये चला हाँ हाँ मतलब किसी इशू है बेनो प्रेसिडेंट दिस एक इशू दिस ब्रिज इज अ रूट ब्रिज मतलब को बासा को प्रेसिडेंट अगर हम इस पे देखेंगे enable show spanning tree मैंने क्या लिखा था इसमें कुछ याद पक्षीवाना याद पक्षी खीलवाना मैं क्या कैसा मानूं priority eating okay leave what about this enable show spanning tree okay we have to check in more detail show spanning tree maybe we will see it in detail okay अच्छा ये अच्छा अच्छा ना issues is a route forwarding route identifier we will see these things tomorrow ठीक है कट करो इंटेक्स डिफाइन अब ये ज्यादा होगा तो लो ही होगा वेयर विल आई राइट द कमांड्स चलो इस पे कमांड लिखते
इस पर HTTP पागानाइजर जहां पे हम देखेंगे क्या इलेक्शन प्रोसेस क्या तशु कॉन्फ़िगर करो HTTP ऐसे तो नहीं मगर जहां पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा उस चीज के लिए आपको थियरी जरूरत है the commands we learned so far that was simple we created the VLANs which is simply you have to create the VLANs VLAN 2 and VLAN 3 empath chorus इंटरफेस हम रेंज भी लिख सकते हैं F0/1 इसको हमने स्विच पोर्ट मोड एक्सेस VLAN 2 सॉरी स्विच पोर्ट मोड एक्सेस तो स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2 इतना ही हमने किया then there were few show commands show VLAN brief or even अगर तो evolution show MAC stable from tomorrow onwards मैं पैकेट ट्रेसर यूज नहीं करूंगा I will use GNS3 GNS3 is same a network simulator here why I will use it is because now I will do a packet captures on it here onwards I will do the packet captures on everything ताकि हम देखेंगे कि God go or path gave ping request path out ping reply that is how you will analyze the things very much necessary in advanced troubleshooting Kashukan GNS चलावा maybe EVNG or GNS यहाँ पे आपको ये इमेज डाउनलोड करनी पड़ती है I will use oh no यहाँ क्वेश्चन layer 2 switch में क्या but I will be able to use layer 3 switch let it come up you need any clarification or anything let me know जितना भी हमने आज पढ़ा let me show you कि हमने क्या पढ़ा as for switch का लगा as for VLAN as for what we again discussed apart from VLAN क्या था porous पे switch पढ़ा VLAN पढ़ा what else access वो सारा इसी में आया हाँ we are yes, okay that's what we studied today विश्व सॉल्यूशन ईशा चाला आए जाता है और this is L3 situation yeah which L3 switch follow मुश्किल but luckily I already have this is Aurora switch by the way but I could shortly say emotions only it will take a lot of time to do it any questions so far tell me please ask me some questions